যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রেডি প্রভুজি। হরে কৃষ্ণ, সাদর প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 100 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 13.100 অনওয়ার্ডস। 100 নম্বর শ্লোক। এই মতে রঘুনাথ আইলা নীলা চলে, এই মতে রঘুনাথ আইলা নীলা চলে, প্রভুর চরণে যাইয়া মিলিলা কুতূহলে, প্রভুর চরণে আইয়া মিলিলা কুতূহলে। দণ্ডপর নাম করি ভট্ট, দণ্ডপর নাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে, দণ্ড পরিণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে, প্রভু রঘুনাথ জানি কইলা লিঙ্গনে, প্রভু রঘুনাথ জানি কইলা লিঙ্গনে। মিশ্র আর শেখরেরও দণ্ডবত জানাইলা, মিশ্র আর শেখরে দণ্ড জানাইলা, মহাপ্রভু তা সবারও বার্তা পুছিল, মহাপ্রভু তার সবার বার্তা পুছিলা। ভালো হইল আইলা দেখো কমল লোচন, ভালো হলো এলো আইলো দেখো কমল লোচন, আজি আমার এথা করিবা প্রসাদ ভোজন, আজি আমার এথা করিবা প্রসাদ ভোজন। গোবিন্দের কহি এক বাসা দেওয়াইলা, গোবিন্দের কহি এক বাসা দৌ আইলা, স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইলা, স্বরূপাদি ভক্তগণে সনে মিলাইলা। এই মত প্রভু সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস, এই মত প্রভু সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস, দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বারোয়ে উল্লাস, দিনে দিনে প্রভু কৃপায় বারে উল্লাস। এইভাবে রঘুনাথ নীলাচলে এসে উপস্থিত হলেন। सो रघुनाथ जो कि तपन मिश्र के पुत्र था, कहां से आया? काशी से, बनारस से पुरी आया। और उनका जो झोला था, झाली था, वो कौन बह रहा था, कौन धो रहा था? ये रामदास विश्वास। ठीक है, ये है बैकग्राउंड। এইভাবে রঘুনাথ নীলাচলে এসে উপস্থিত হলেন এবং মহানন্দে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তার শ্রী পাদপদ্মে পতিত হলেন। রঘুনাথ ভট্ট দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী পাদপদ্মে পতিত হলেন এবং তাকে রঘুনাথ ভট্ট বলে জেনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। তো रघुनाथ भट्टाचार्य यानी रघुनाथ भट्ट। তপন মিশ্র का पुत्र রঘুনাথ ভট্ট তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তপন মিশ্র এবং চন্দ্রশেখরের দণ্ডবত জানালেন এবং মহাপ্রভু তাদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বললেন, খুব ভালো হলো যে তুমি এখানে এলে, এখন গিয়ে কমল নয়ন জগন্নাথ দেবকে দর্শন করো। আজ তুমি আমার এখানে এসে প্রসাদ ভোজন করবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে রঘুনাথ ভট্টের জন্য একটি বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে দিতে বললেন এবং তারপর তিনি স্বরূপ দামোদর প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এইভাবে রঘুনাথ ভট্ট শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে 8 মাস রইলেন এবং মহাপ্রভুর কৃপায় দিনে দিনে তার অন্তরের অপ্রাকৃত উল্লাস বর্ধিত হতে লাগলো। देखिए, सो नाइस, महाप्रभु भक्त लोग का कितना सुंदर सत्कार करते थे। सो नाइस डिवोटी केयर। जब कोई भक्त आता था उनको आलिंगन करना, उनको माला पहनाना, उनको प्रसाद के लिए बंदोबस्त करना, प्रसाद के लिए निमंत्रण भी करना और फिर उनको रहने का वासस्थान देना और सभी दूसरे भक्त से मिलाना, है ना। ये हम लोग देखते आए हुए हैं। जो भी आता था वैसे करके महाप्रभु करते थे। कोई रिपीट कर पाएंगे क्या क्या महाप्रभु करते थे जब कोई भक्त आता था बंगाल से या कोई कहीं से? हरे कृष्ण। महाप्रभु जी आलिंगन करते थे और
उनको रहने के लिए जगह की व्यवस्था करते थे और माला प्रसाद चंदन माला प्रसादी माला चंदन। हाँ, माला प्रसादी माला चंदन देते थे, रहने के लिए व्यवस्था करते थे, वो प्रसाद के लिए निमंत्रण करते थे। और क्या छूट गया? लोगों से मिलवाते थे। लोग हाँ, लोगों से मिलवाते थे, भक्त से मिलवाते थे। वैष्णव एटिकेट। उनके टेक केयर के लिए किसी भक्त को अपॉइंट भी कर देते थे। हाँ, एक्सेलेंट पॉइंट। यस यस। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করেন নিমন্ত্রণ। নেক্সট প্লিজ। हे भक्ति प्रभु। सुषमा साहू माता जी आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, फिर से बोल दीजिए एक बार। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করেন নিমন্ত্রণ। मध्य मध्य महाप्रभुर करे निमंत्रण, করভাত করেন আর বিবিধ ব্যঞ্জন। घर भात करे नार विविध व्यंजन। রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ। रघुनाथ भट्ट पाके अति सुनिपुण, যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম। যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম। পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন। परम संतोषे प्रभु करे न भोजन, প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ। प्रभुर अवशिष्ट पात्रे भट्टर भजन। রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা। रामदास जोदि प्रथमे प्रभुर मिलिला, মহাপ্রভু অধিকারে কৃপা না করিলা। महाप्रभु अधिक तारे कृपा न करिला। অন্তরে মুমুক্ষুতে হো বিদ্যা গর্ববান। अंतरे मुमुक्षुते हो विद्या गर्भवान, সর্বচিত্ত জ্ঞাতা প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান। सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। এইভাবে রঘুনাথ ভট্ট শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে 8 মাস রইলেন এবং মহাপ্রভুর কৃপায় দিনে দিনে তার অন্তরের অপ্রাকৃত উল্লাস বর্ধিত হতে লাগলো। তিনি মাঝে মাঝে অন্ন এবং বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করে তার ঘরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন। রঘুনাথ ভট্ট ছিলেন রন্ধনে অত্যন্ত সুনিপুণ। यस मने करेंगे माता जी। प्रभु यहाँ पे पहले तो महाप्रभु ने उनको अपने साथ रखा था। अपने साथ रखा था? बोले ना कि भोजन करने के लिए। अपने साथ कहाँ रखा था? अच्छा, फिर गोविंद को उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु। রঘুনাথ ভট্ট ছিলেন রন্ধনে অত্যন্ত সুনিপুণ। তিনি যা রন্ধন করতেন তা অমৃতের মতো সুস্বাদু হতো। किसी किसी भक्त का ऐसा होता है ना, कुछ भी बनाए, भाई सिंपल आइटम भी बनाए वो भी बहुत अमृत जैसा लगता है। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে यस निवेदन लिमड़ी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे मनोहारिणी माता जी कुछ भी बनाते हैं ना बहुत टेस्टफुल होता है। सिंपल का फूड भी बहुत टेस्टफुल होता है। जैसे मैगी। लिस्ट बहुत लंबा है एक्चुअली, हम देख रहे हैं। हाँ प्रभु, हम भी माता जी के हाथ का खाए उस दिन, बहुत अच्छा बना था। अरे और भी बहुत है, जो बोल रहे हैं वो लोग भी कोई कम नहीं है। गायत्री माता जी भी, गायत्री माता जी, गायत्री राधिका माता जी, स्पेशली उनका पकोड़ा जो माता जी बनाई थी उस दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अरे ओके प्रभु जी, हम लोग सुनीता राधिका क्लास करते हैं, वो बहुत अच्छा बनाती है प्रसाद। कौन? सुनीता राधा जी, राधिका माता जी, हरी बोल। यस, उनका चीनी पनीर भूलेंगे नहीं। ऐसे बहुत भक्त हैं। आप लोग प्रभु में से कौन कौन कुकिंग आता है प्लीज हाथ उठाइए। प्रभु में से कौन कौन अच्छा कुक है, गूगल हाथ उठाइए कृपया। नहीं हंसे मत है भी, फिर उनको गोविंद का सेवा में बुला लेंगे। वही तो बोल रहे हैं। कोई हाथ नहीं उठा रहा। प्रभु में से कोई भी नहीं है जो हाथ अच्छा कुकिंग करता है। दिलीप प्रभु, मुन्ना लाल प्रभु, मुन्ना है बस। शक्तिवत प्रभु नहीं है क्या? वो शक्तिवत वृंदावन वासी हो गए प्रभु। शक्तिमान प्रभु। हाँ, शक्तिमान प्रभु का इज्जत बता देता था, लेकिन अभी है नहीं।
जा प्रभु कोई आप नहीं भी है। तो प्रभु लोग में कोई नहीं है जो अच्छा संजय प्रभु प्रभु आप बताइए अपना एक्सपर्ट है प्रभु। हरे कृष्ण दयावीर प्रभु कोई नहीं है जा ना श्यामा बाजू सुंदर प्रभु है ना, कचौड़ी समोसा स्पेशल। हाँ श्याम सुंदर प्रभु, श्याम सुंदर। आज तो नहीं लोग आता। मत कट गए ओके हाथ नहीं उठा रहे कि फंस जाएंगे, फिर हम लोग बैठ जाएंगे, इसीलिए हाथ नहीं उठा रहे। यस ओके मे बी हम लोग का कभी कंपटीशन हो सकता है चारों ग्रुप में, कुकिंग कंपटीशन। कोई अभी तो ठंड का मौसम आ रहा है, कोई कहीं हम लोग पिकनिक करें और पिकनिक में उधर लाइव कुकिंग होगा पिकनिक में। ओके सभी टेस्टी होगा प्रभु। हरि बोल। हरी बोल। कोई आपके घर में दो दिन आगे प्रभु वहाँ पर प्रभु लोग कुकिंग करेंगे। ये प्रभु लोग कुकिंग करेंगे, माता जी लोग माता जी लोग पूरा हम लोग कीर्तन करेंगे, हम लोग कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे। और हो सकता है ये स्थान कुछ गंगा के किनारे में हो, एकदम बाय द गैंजेस में भी, जैसे ये जो कलाधर दास का श्रीपाठ एकदम गंगा के पास में, और गंगा जल दिए रान्ना, गंगा जल और घुटे दिए रान्ना হবে। ओके और ये सब में तो मातृ लोग एक्सपर्ट है, एकदम उनुन धरिए रान्ना, ठीक है। मातृ लोग बोला यस अरे नहीं माता जी बाहर जाके प्रभु काम जी नहीं लोग होता, बाहर जाके काम नहीं अंदर करते। कुछ नहीं अब नहीं है। होता, प्रभु लोग पिकनिक जाके हम लोग काम नहीं करते, हम लोग पिकनिक जाके वहाँ पे गेम खेलेंगे आपके साथ। हरे कृष्ण। घर से प्रभु बना जी के ले जाएंगे प्रभु गंगा जी। के किनारे हवा बहुत चलेगी, वहाँ कुकिंग नहीं कर पाएंगे फिर इतनी प्रभु हवा जी में। घर से बना के ले जाएंगे, सबको आइटम दे दीजिएगा, सब अपने अपने घर से बना के लाएंगे, शेड्यूल दे दीजिएगा। ठीक है फिर सरोज माता जी जैसे बोला वैसे खूब अच्छा कल्पना था हाँ, प्रभु प्रभु जी। जी सबको आप प्रभु जी दर्शन घर में जो एस नाम से ना वही सब बना के लाइएगा। ओके एस नाम से बहुत हरी लोग बोल, हैं। सबको हरी बोल, हरी बोल, हम तो बनाएंगे, जो बोलेंगे प्रभु जी वही बनाएंगे, हाँ बना लेंगे बना लेंगे। आइटम दे हाँ दीजिए। प्रभु जी आप जो बोलेंगे हम लोग वही आइटम वही बनाएंगे। बनाएंगे, वही बनाएंगे प्रभु जी। ठीक है 10 आइटम दे देंगे सब माता जी लोग को, लोग सब बना के ले आएंगे। ठीक है प्रभु। मेरी आंखें बंद है प्रभु, कान भी। হরে কৃষ্ণ ওকে তো অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু ভোজন করতেন এবং মহাপ্রভুর অবশিষ্ট পাত্র রঘুনাথ ভট্ট ভক্ষণ করতেন। रामदास विश्वास যখন প্রথমে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন, रामदास विश्वास माने ये जो इनके साथ आया था ना, जो महापंडित था, वो जब প্রথম মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন, মহাপ্রভু তাকে কৃপা প্রদর্শন করলেন না, क्योंकि कुछ गड़बड़ था। অন্তরে রামদাস বিশ্বাস ছিলেন নির্বিশেষবাদী, মুক্তিকামী, এবং তিনি তার বিদ্যার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সকলের এই হৃদয় জানতেন। রামদাস বিশ্বাস আচ্ছা রামদাস কইলা তবে নীলাচলে বাস। सुनीति राधिका माता जी। रामदास केला तो भी नीलांचले वास, পট্টনায়ক গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্য প্রকাশ। पट्टनाय गोष्ठी के पढ़ाए काव्य प्रकाश। অষ্টমাসেরহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা। अष्टमास रहे प्रभु भट्टे विदाय दिला, অষ্টমাসেরহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা। अष्टमास रहे प्रभु भट्टे विदाय दिला, বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিলা। विवाह न करिय बोली निषेध करिला। यस करू माता जी। प्रभु रामदास तो वो रामचंद्र भगवान के महान भक्त थे ना, तो निर्वेशवादी क्यों हुए? हाँ हो सकता है। गुड पॉइंट। रामचंद्र जी का तो आकार था। अभी देखते हैं, आगे देखते हैं और कुछ होगा लिखा। गुड पॉइंट, गुड क्वेश्चन। प्रभु लिखा ना भगवान से तादात्म्य होना चाह रहा था। हाँ वो तो मुक्तिकामी हो गया, लेकिन निर्विशेषवाद वो अहंकार भी था ना, अपनी विद्या का। निर्विशेषवादी माने क्या है? अनम्यूट करके बोलिए। जिनका रूप नहीं है प्रभु, मतलब कोई रूप को नहीं मानते वे लोग। भक्त लोग अभी भी अनम्यूट म्यूट सीखा नहीं। यस जिनका निर्विशेषवादी यानी भगवान का रूप नहीं मानता है, तो रामचंद्र जी का तो रूप है, तो प्रश्न तो इज ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके
यस अशोक प्रभु थोड़ा पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य पढ़िए 11 और 12 का, 111 112 का। यस राजीव प्रभु राजीव प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वो निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान का विशेष रूप नहीं मानते, लेकिन कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो सोचते हैं जो भगवान है वो ब्रह्म है, उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन कभी कभी वो क्या है मनुष्य का रूप धारण करते हैं, साधारण मनुष्य का रूप धारण करते हैं, और मनुष्य के अंदर जो परमात्मा है वो ब्रह्म है, मतलब वो भगवान जो अवतार भगवान लेते हैं उसमें वो भेद करते हैं उनकी आत्मा और शरीर में। तो वो आत्मा जो है वो ब्रह्म है, वो जो बोल रहे हैं वो हमको फॉलो करना है, उनको शरीर और आत्मा को भेद करते हैं। तो वो राम को क्या एक साधारण मनुष्य मान रहे हैं, और राम का नाम क्योंकि राम के अंदर जो ब्रह्म है वो बोल रहे हैं तो उनका नाम वो ले रहे हैं। इस टाइप का फिलोसफी रहता है। ओके यस अशोक प्रभु। 111 पढ़े प्रभु। रामदास कैला तबे नीलाचल बास। श्लोक हो गया प्रभु, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। রামদাস বিশ্বাস তখন নীলাচলে বাস করতে লাগলেন এবং পট্টনায়কের পরিবারকে মানে ভবনন্দ রায়ের বংশধরদের কাব্য প্রকাশ পড়াতে লাগলেন। अष्टमास रही प्रभु भट्टी विदाय दिला, ये भी हो गया है। हाँ प्रभु जी। 8 मास পরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বিদায় দিলেন এবং তাকে বিবাহ না করতে উপদেশ দিলেন। রঘুনাথ ভট্টকে সংসারে অপবিষ্ট অবস্থাতেই কৃষ্ণ পরায়ণ হতে দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে দ্বার পরিগ্রহ করে মায়াময় সংসারে প্রবিষ্ট হতে নিষেধ করলেন। अर्थात किसी का हस्त ग्रहण नहीं करने के लिए। যারা তাদের ইন্দ্রিয় দমন করতে অক্ষম তাদের জন্যই বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ছিলেন অতি উন্নত কৃষ্ণ ভক্ত, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের কোনো বাসনা ছিল না। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন সংসার বন্ধনে আবদ্ধ না হতে। সাধারণত পুরুষাভিমানী বিবাহিত ব্যক্তিদের পক্ষে পারমার্থিক চেতনার উন্নতি সাধন করা দুষ্কর। বিবাহিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই তার পরিবারের প্রতি আসক্ত এবং ভোগপরায়ণ, তাই তাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা অল্প। অর্থাৎ যারা নিজেকে পুরুষ মনে করেন, অর্থাৎ পুরুষের অভিমান থাকে পুরুষত্বে, তাদের পারমার্থিক উন্নতির আশা কম থাকে, সম্ভব থাকে না, তাই তারা বিবাহ করে। কিন্তু যাদের ভগবানের প্রতি আসক্তি থাকে, ভগবানের প্রতি স্নেহ থাকে, প্রেম থাকে, তারা হরিভক্তির সম্ভাবনা পায়। ओके थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मैं एक बार फिर से जस्ट गो थ्रू अगेन। यस ज्योति माता जी। प्रभु इफ इट इज सेड कि अभी जैसे बोला कि उनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत लो हो जाता है। फिर भी एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। फिर রামদাস বিশ্বাস তখন নীলাচলে বাস করতে লাগলেন এবং পট্টনায়কের পরিবারকে ভবানন্দ রায়ের বংশধরকে কাব্য প্রকাশ পড়াতে লাগলেন। 8 মাস পরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বিদায় দিলেন এবং তাকে বিবাহ না করতে উপদেশ দিলেন। রঘুনাথ ভট্টকে সংসারে অপ্রবিষ্ট অবস্থাতেই কৃষ্ণ পরায়ণ হতে দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে দ্বার পরিগ্রহ করে মহাময় সংসারে প্রবিষ্ট হতে নিষেধ করলেন। इसका इंग्लिश पढ़िए इसका। Chaitanya Raghunath Bhattacharya had become a greatly advanced devotee while still unmarried. Shri Chaitanya Mahaprabhu could see this, and therefore he advised him not to begin the process of material sense gratification. Okay. যারা তাদের ইন্দ্রিয় দমন করতে অক্ষম তাদের জন্যই বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ছিলেন অতি উন্নত কৃষ্ণ ভক্ত, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের কোনো বাসনা ছিল না। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন সংসার বন্ধনে আবদ্ধ না হতে। সাধারণত পুরুষাভিমানী বিবাহিত
ব্যক্তিদের পক্ষে পারমার্থিক চেতনায় উন্নতি সাধন করা দুষ্কর। Generally, a person cannot make much advancement in spiritual consciousness if he is married. ये सेंटेंस आप लोग कौन नहीं मानते हैं? हाथ उठाइए, गूगल हाथ। कोई है जो उपस्थित जो इस सेंटेंस को नहीं मानते हैं? Generally, a person cannot make much advancement in spiritual consciousness if he is married. सिर्फ दिलीप प्रभु नहीं मानते, बाकी सब मानते हैं। या दिलीप प्रभु भी नहीं मानते हैं, तो सब समझ गया आशा करता हूँ। ওকে, বিবাহিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই তার পরিবারের প্রতি আসক্ত এবং ভোগপরায়ণ, তাই তাদের অতি ভক্তির সম্ভাবনা অল্প। बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, अर्निंग करना पड़ेगा, समय नहीं रहेगा भक्ति के लिए। ओके, तो पूरा पूरा पढ़ने से तात्पर्य फिर क्लियर हो जाएगा बहुत कॉन्सेप्ट्स। हरे यस, कृष्ण प्रभु जी। ज्योति माता जी पहले हाथ उठाए थे, बोलिए ज्योति माता जी। प्रभु मेरा क्वेश्चन यही है जो आपने अभी आंसर दिया कि कौन कौन नहीं मानता है। तो प्रभु जब हम लोग एक सेकंड, एक वर्ड मत भूलिएगा, यहाँ लिखा है जेनरली, वो वर्ड जेनरली मत भूलिएगा, ठीक है? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। उसको उसको दिमाग में रखते हुए अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, जनरली हम लोग देखते हैं ना, क्योंकि वो फंस जाता है वो सब चीजों में, कमाना है, उनके लिए देखना है, पर ये तो प्रभु लोग के लिए है, क्योंकि वो कमाने जाते हैं ये सब। लेकिन माताओं के लिए भी तो ये होता है ना प्रभु, कि उन लोग आज हम लोग कोई गेस्ट आ जाता है, हम लोग को अपना चैंटिंग छोड़ के पहले सेवा देखना पड़ता है कि किचन में प्रसादम है कि नहीं, कोई वैष्णव आ गया उनके लिए देखना पड़ता है, हमको अपना क्लास छोड़ देना पड़ता है प्रभु। तो हमारा भी तो आज बच्चों को स्कूल भेजना है, तो हमें भी तो अपना स्पिरिचुअल ये छोड़ देना पड़ता है माता जी लोग को। तो हमारे लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, प्रभु लोग तो संन्यास ले सकते हैं, पर हमारा एडवांसमेंट कैसे होगा प्रभु माता जी लोग का? अगर प्रभु लोग नहीं है भक्ति में, तो प्रभु भक्ति में तो अब उनकी भक्ति करेंगे, उनको हेल्प करेंगे डिवोशन में, तो हमारा भी होगा एडवांसमेंट। अच्छा, आपका प्रश्न है कि अगर प्रभु भक्त नहीं है तो माता जी कैसे एडवांस करेगा? हाँ, बिकॉज इसी लाइन पे, इसी बेसिस पे। ओके, आई गॉट इट। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट में कैसे आ गया ये चीज? ओके, सुनीति राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ना महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोले थे आप बंगाल जाके शादी कर लो गृहस्थी में। हाँ, फिर अभी वो तो इतने अच्छे भक्त थे नित्यानंद प्रभु तो। अच्छा, तो वो उस समय जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। आई मीन देखना चाहिए था, अभी तो पार कर गया वो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को, ये क्योंकि नित्यानंद प्रभु और इनको डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं, इसमें तो कोई किसी का प्रश्न नहीं है ना, ये तात्पर्य में किसी का प्रश्न नहीं है, ठीक है? तो दोनों को तो पहले ज्योति माता जी, अगर प्रभु भक्त नहीं है तो माता जी लोग कैसे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेंगे? हाँ, तो अगर प्रभु भक्त नहीं है फिर भी प्रभु का सेवा करके उनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मिलेगा। अगर डिवोटी नहीं है फिर भी सेवा तो करना पड़ेगा, बिकॉज जो हस्बैंड होता है वो सबसे पहला स्पिरिचुअल मास्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट गुरु होता है, तो उनको सेवा करने से ऐसे ही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। प्लस माता जी को थोड़ा बाधा तो होगा कि उनका सेवा, घर का काम एक्सेट्रा, और कोई हेल्प भी नहीं करता है भक्ति में, कुछ इंस्पिरेशन भी नहीं देता है, तो ठीक है। लेकिन ये तो सब भगवान देख रहे हैं, और भगवान देखेगा कि जब माता जी का तीव्र इच्छा है भक्ति में आगे बढ़ने का, तो भगवान जरूर कुछ रास्ता कर देगा। भगवान तो रास्ता कर सकता है ना, कर सकता है, तो किसी को शक है इसमें? नहीं है, नहीं करते हैं भी हम प्रभु जी, बहुत जगह रास्ता करते हैं। ये सीरियस भक्त है, जब देखेगा कि ये सीरियस भक्त है, इनको बढ़ना है आगे, तो भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देगा। यही है उत्तर। कृष्णा कैन रीअरेंज। आपका जो फैमिली सिचुएशन है उसको रीऑर्गेनाइज करने में कितना सेकंड लगेगा भगवान को? 1 सेकंड में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, 1 सेकंड बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी मेरा है एक्सपीरियंस 1-2 ऐसा। मेरे फ्रेंड्स लोग आए थे प्रभु इधर उधर से 2-3 जगह से, और मेरा सैटरडे संडे क्लास हो रहा था। उस समय बहुत मैं नई डिवोटी थी, तो आई वाज वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गीता, भगवत गीता एंड ऑल दैट। तो मैं ना बहुत ज्यादा क्लास के लिए इतना अटैच्ड हो गई थी कि मेरी क्लास मिस नहीं कर सकती 1 मिनट भी। तो उन लोग जब आ गए प्रभु, तो उन लोग सैटरडे संडे आ रहा था मेरा बीच में क्लास के, तो मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि भगवान अब इन लोग आ गए, मैं आपका क्लास कैसे करूंगी?
मैं क्लास को मिस करना नहीं चाहती हूँ, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। और प्रभु उन लोग का नेक्स्ट डे, उन लोग का फ्राइडे को फाइट हुआ और उन लोग फाइट करके दोनों जन चले गए। अब तक हम लोग का फाइट ही चल रहा है फ्रेंड्स लोग में, लेकिन मेरा क्लास मिस नहीं हुआ प्रभु। लेकिन ऐसा तो मैंने नहीं मांगा था कि फाइट हो जाए और मेरा क्लास नहीं, मेरे फ्रेंड्स लोग का फाइट हो जाए, ऐसा क्लास, ऐसा तो नहीं मांगा था मैंने, पर भगवान ने ऐसा रास्ता निकाला। भगवान आप ऐसा नहीं मानने से क्या होता है? भगवान को जो ठीक लगता है वही करेंगे भगवान, है ना? हम लोग को मानना नहीं मानने से, यू थिंक कृष्णा केयर्स अबाउट दैट? भगवान को जो इच्छा वही करेंगे। वेरी गुड, गुड एग्जांपल। यस, सुनीति राधिका माता जी, तो नित्यानंद प्रभु को क्यों महाप्रभु ने बोला जाओ शादी करो बंगाल में रहो? सो दिस इज माय एनालिसिस अगेन, बिकॉज आई एम श्योर उसको पढ़ने से और ज्यादा श्रील प्रभुपाद इलैबोरेट करेंगे। सो कॉन्ग्रीगेशनल प्रीचिंग के लिए नित्यानंद प्रभु को भेजा, कॉन्ग्रीगेशनल प्रीचिंग के लिए। समझ में आ रहा है ना कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग क्या होता है? ये गृहस्थों को, प्रभु जी, गृहस्थों को, यस प्रभु। सो ये गृहस्थों को प्रीचिंग सन्यासी लोग करता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु अगर विवाह करेगा तो नित्यानंद प्रभु का अप्रकट के बाद भी, लीला समाप्त के बाद भी उनका स्त्री जानवा माता जी इसको आगे लेकर गया। ये मालूम है ना आपको? जानवा माता पूरा वैष्णवों का लीडर थी। नित्यानंद प्रभु का जो नेक्स्ट जनरेशन पूरा जानवा माता पूरा संभालती थी। सो ये एडेड बेनिफिट है। ये तो सन्यासी के মানে সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে এটা সম্ভব ছিল না। सो दिस कुड बी द रीजन। एंड कॉन्ग्रीगेशनल प्रीचिंग में अगर भक्त भी गृहस्थ है तो इट हेल्प्स यू नो। अगर आपका जो प्रचारक है वो भी अगर गृहस्थ है तो इट हेल्प्स, बिकॉज गृहस्थ का दुख सुख दे कैन कोरिलेट। यस बीच बीच में साधु आ सकता है, बीच बीच में कोई सन्यासी आएगा, एक्सॉल्टेड क्लास दे देगा, हरि बोल, वेरी नाइस। बट डेली आप दाल चावल रोटी खा पाएंगे, बीच बीच में छोला भटूरा हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन डेली अगर छोला भटूरा होगा वो आप हजम नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही I don't know whether this example fits or not, but yes, नहीं प्रभु जी अच्छे समझ Yes, रहे हैं। yes. this is what I, so अगर कोई अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने बंगाल भेजा प्रचार करने के लिए, so can add, anybody wants to add? Yes, संगिनी श्यामप्रिया माता जी। यस प्रभु, जैसे मतलब महाप्रभु जब गृहस्थ थे तो उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देता था, उनको सीरियस नहीं लेता था, तो उसके लिए उन्होंने संन्यास आश्रम को अपनाया, है ना। तो इसीलिए गृहस्थ लोग मतलब सब अगर सन्यासी हो जाता तो फिर परंपरा तो आगे बढ़ता नहीं, इसीलिए प्रभु को संन्यास आश्रम को ग्रहण किया और नित्यानंद प्रभु को गृहस्थ लोग को प्रेरणा देने के लिए गृहस्थ आश्रम में छोड़ा। So both kinds of preachers are needed. सब Both kinds preaching of, yeah. Okay. आगे। वृद्ध माता पितर जाई करो हो सेवन, বৃদ্ধ মাতার পিতার যাই করো সেবন, বৈষ্ণব পাশ ভাগবত করো অধ্যয়ন। বৈষ্ণব অর্থ ভাগবত করো অধ্যয়ন। ওকে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে উপদেশ দিলেন, ঘরে ফিরে গিয়ে তোমার বৃদ্ধ মাতা পিতার সেবা করো এবং ভাগবত তত্ত্ববেত্তা শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে শ্রীমদ ভাগবত অধ্যয়ন করো। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट के उपदेश दिला। ओके, वृद्ध माता पिता घरे फिरे गए, माने वापस आप काशी जाओ और माता पिता यानी तपन मिश्रा और उनका वाइफ, ये आपका उनका माता पिता है, उनका आप सेवा करो। परमेश्वर भगवान से चैतन्य महाप्रभु কিভাবে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে শ্রীমদ ভাগবত অধ্যয়ন করার নির্দেশ দিয়েছেন তা বিচার করে দেখা উচিত। তিনি তাকে পেশাদারী ভাগবত পাঠক বা বৈষ্ণব বৈয়াকর্ণিকের কাছে শ্রীমদ ভাগবত অধ্যয়ন করার উপদেশ দেননি। বৈয়াকর্ণিকের का हिंदी क्या है? व्याकरण जो जानता है, जिसको माने ये लैंग्वेज का गर्व है, यू नो, उनके पास नहीं भेजा। तो भागवत सुनना है तो कोई इंग्लिश टीचर से सुनना है या कोई व्यक्ति भागवत से सुनना है? सो यहाँ पर पेशावर बोला गया, पेशावर व्यक्ति से नहीं सुनना है। पेशावर भागवत पाठक बा बोयाकरणिकर माने कि ग्रामरियन ना कि इंग्लिश में क्या? वास्तविक भक्त प्रभु, वास्तविक भक्त, प्रोफेशनल मैन।
प्रोफेशनल मैन, ओके। कहाँ से जो मिला? गुरु परंपरा से होंगे उनके लिए बोला ग्रामर गया। वाला वर्ड कहाँ से मिला अशोक प्रभु को? इसका तो अर्थ ये भी होता है, जब ये आपका बोलते हैं ना, परंपरा से जो होता है ना। আচ্ছা, এই মনোজল্পনা কল্পনা, আমি ভাবলাম আপনি হয়তো দেখে বলছেন, মানে আপনার সামনে বাংলা বইটি আছে। ওকে। শ্রীমদ ভাগবত অধ্যয়ন করার উপদেশ দেননি, ভক্ত ভাগবত বৈষ্ণবের কাছে তা অধ্যয়ন করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি রঘুনাথ ভট্টকে তার পিতামাতার সেবা করার উপদেশও দিয়েছিলেন, কেননা তার উভয়ই ছিলেন ভগবত ভক্ত বৈষ্ণব। বাহ, ভেরি নাইস, বোথ ওয়ার ডিভোটিস। যিনি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে চান তার পক্ষে কৃষ্ণ ভক্তের সেবা করার চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। সে সম্বন্ধে শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, চারিয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পাইছে কেবা। জড়ভোগ পরায়ণ বিষয়ী মাতা পিতার সেবা করার উপদেশ মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে কখনোই দেননি। হরে কৃষ্ণ, মাই গুডনেস, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, बहुत प्रश्न आ सकता है इसके ऊपर। জড়ভোগ পরায়ণ বিষয়ী পিতা মাতার সেবা করার উপদেশ মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে কখনোই দেননি। তো প্রভু ক্যা, কিন্তু যেহেতু তার মাতা পিতা ছিলেন বৈষ্ণব, তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সেবা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, সাধারণ মাতা পিতার সেবা করা উচিত নয় কেন? সে সম্বন্ধে শ্রীমদ ভাগবতে বলা হয়েছে, গুরুর না শাস্যাৎ স্বজনো না শাস্যাৎ পিতা না শাস্বাজ জননী না শাস্যাৎ দৈবম না তৎস্বাৎ না পতিশ্চ শাসন নামো চৈদ্যা সমুপেত মৃত্যুম। আসন্ন মৃত্যু থেকে যিনি রক্ষা করতে পারেন না সেই গুরু নন, সেই স্বজন নন, সে পিতা নন, সেই জননী নন, সেই দেবতা নন, এবং সেই পতি নন। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? জন্মের সময় সকলেই স্বাভাবিকভাবে মাতা পিতা লাভ করে, কিন্তু প্রকৃত পিতা মাতা হচ্ছেন তারা যারা তাদের সন্তানের আসন্ন মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারে। কৃষ্ণ ভক্ত পিতামাতার পক্ষে কেবল তা সম্ভব। তাই যে পিতামাতা তাদের সন্তানদের কৃষ্ণ ভাবনা অমৃতের প্রদান করতে পারেন না, তাদের প্রকৃত পিতামাতা বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। ভক্তের সামৃত সিন্ধু থেকে, यस बोलिए माताजी। प्रभु जी, ठीक है, जो माता पिता डिवोटी नहीं है ठीक है उनको, लेकिन जो हम लोग इस सोच से तो कर सकते हैं ना माता पिता का सेवा, कि एटलीस्ट वो हमको लाए और मैं भक्त बनी। अगर वो मुझे लाते ही नहीं तो मैं भक्त भी नहीं बनती। तो उस सोच से तो हम सेवा करना चाहिए ना माता पिता का, चाहे मैं भक्त बनाने के लिए नहीं किया हो कुछ भी, पर हमें लाए दुनिया में तभी हम भक्त बन पाए। एज अ डिवोटी अगर हम सोचे तो एटलीस्ट वो लाए तभी हम भक्त बन पाए, उस हिसाब से हमको सेवा करनी चाहिए। ऋणी है तो गतो मुकुंदम परोरित कृतम, इसका उत्तर ये है, जो भगवान मुकुंद को सेवा करने से सब ऋण से चूक जाता है। तो जो चीज के लिए हम ऋणी हैं, इट इज एनीवेज रिपेड। दूसरी बात है, यहाँ लिखा है जड़भोग परायण বিষয়ী माता पितार सेवा করার উপদেশ মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে কখনোই দেননি। So this is specific instruction. Jyoti Mataji, maybe this is specific instruction to Raghunath Bhatta. Yes, Prabhu. Yes. Okay, you got that point? Yes, Prabhu. Thank you. Shashi Mataji. प्रभु जी, यहाँ पे ये अभी श्लोका का जो अर्थ है वहाँ लिखा है कि पति को भी नहीं सम्मान करना चाहिए क्या? तो आप बोले कि सब पति जैसा, पति का कोई नहीं सम्मान, नहीं प्लीज, पति को नहीं सम्मान करना चाहिए, ये वर्ड कहाँ लिखा है? नहीं, ऐसे व्यक्ति को पति बनना ही नहीं चाहिए। तो दोनों में अंतर है ना माता जी? यस। अभी बोले प्रश्न। बन गया तो जैसा भी हो उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो अलग प्रश्न है, वो पूरा दोनों प्रश्न का लिंक गलत है। यहाँ वो लिख रहा है फ्रॉम पति का पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए अगर वो अपने पत्नी को उद्धार नहीं कर पाए। इस एंगल से समझिए इसको,
उसको पति नहीं बनना चाहिए, সেই पति पति नॉन। अगर कोई पिता बच्चा उत्पन्न कर रहा है तो ये रेडी रहना चाहिए इस बच्चे को भक्त बनाएंगे, अदरवाइज डोंट क्रिएट चिल्ड्रन। उस एंगल से इसको देखिए। कोई अगर लड़का गृहस्थ आश्रम में घुस रहा है तो ये उद्देश्य लेके घुसना चाहिए कि जो अभी पत्नी आया है वो भगवान का दासी है, उनको भगवान का सेवा में लगाना है, मेरे सेवा में नहीं। ये सोच करके फिर गृहस्थ आश्रम में घुसना चाहिए फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके एंगल से देखिए। और पत्नी को उसका सेवा करना चाहिए या नहीं, इसके लिए श्रील प्रभुपाद का सिस्टर का एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा। श्रील प्रभुपाद का सिस्टर भवतारिणी देवी का, उन्होंने शुद्ध वैष्णव था। प्रभुपाद लिखते हैं फर्स्ट क्लास डिवोटी। प्रभुपाद किसी को आज तक फर्स्ट क्लास बोला नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं माय सिस्टर भवतारिणी देवी फर्स्ट क्लास डिवोटी, शी यूज्ड टू कुक नॉनवेज फॉर हर हस्बैंड। क्यों? हस्बैंड खाता था, बोलता तुम्हारा हाथ से खाएंगे, क्या करेंगे, अभी बनाना पड़ता था। लेकिन एक दिन वही हस्बैंड, इतना सेवा करती थी उनको, वही हस्बैंड एक दिन बोला हमको बहुत बुरा लगता है तुम हमारे लिए ये सब बनाते हो, तुम इतना अच्छा वैष्णवी हो, छोड़ दो, मत बनाओ। खुद भी छोड़ दिया खाना, उनको भी छोड़ दिया, बोलिए छोड़ दो, मत बनाओ। सो दिस इज द पावर ऑफ प्योरिटी। शुद्धता का यही क्षमता है, व्यक्ति को चेंज कर देगा। हमारे गुरु महाराज बताते थे कि মানে অনেক বেশি ভক্ত বানাতে হবে না, জীবনে একজনকে ভালো ভক্ত বানিও, সেটা হচ্ছে নিজেকে। নিজেকে এত ভালো ভক্ত বানিও कि তোমাকে দেখে সবাই পরিবর্তন হয়ে যায়, তোমার আচরণ দেখে। सच बात बताओ तो बताइए, आपके जीवन में क्या ऐसा आप लोग इस्कॉन में नहीं देखा भक्त जिनको देखकर ही उनका आचरण देख करके आपको लगा कि काश ये गुण मेरे में होता, और आप खुद को परिवर्तन करने का प्रयास किया? ऐसा कोई है नहीं क्या? बहुत होगा। जिनको देख के, जिनको संगत किया आपने और देखा माय गुडनेस, क्या ह्यूमिलिटी, क्या हम्बलनेस, काश ऐसा ह्यूमिलिटी मेरे में हो। और फिर आप भी उनके जैसे हम्बल बनने का, हो सकता है पहले नाटक बोल सकते हैं उस वर्ड को, लेकिन बाद में एटलीस्ट इवन इफ यू हैव टू कॉपी, देयर इज नथिंग शेम इन अबाउट इट। ऐसे हुआ होगा सबका ना। यस यस, संगनी श्याम पे माता जी। यस प्रभु, यहाँ पे जैसे माता पिता जी के बारे में बोला गया है, तो जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, मतलब जहाँ तक माता पिता जी को ज्ञान था तो उन्होंने ज्ञान दिया, तो संस्कार दिया, अच्छे बुरे का ज्ञान दिया कि भगवान से मिलाए, जन्माष्टमी और रामनवमी में व्रत करना उन्हीं लोगों ने सिखाया, भगवान का आरती, मतलब जितना तक उनको ज्ञान था। कृष्ण भावना में रहा कि नहीं रहा नहीं पता, लेकिन उससे तुम लोग तो रिस्पेक्टेड है ना प्रभु, क्योंकि हम लोग तो फिर असंस्कारी रहते हैं, अच्छे बुरे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे रहना। हाँ उत्तर है, हाँ यस आंसर है, हाँ उन्होंने बोया ना प्रभु संस्कार का, भक्ति का। आंसर सही है। यस, रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। यस यस, सुनीत राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये ऋषभ महाराज जी ने भी कहा था ना अपने पुत्रों को शिक्षा देते समय कि अगर जो माता पिता अपने बच्चों को भक्त नहीं बना पाए, उस माता पिता को नहीं सेवा करनी चाहिए। ऋषभ देव महाराज जी। कौन कौन महाराज जी? ऋषभ देव, भरत महाराज के पिता ऋषभ देव। अच्छा, ऋषभ देव, उनका सेवा नहीं करना चाहिए जो माता नहीं पिता। नहीं, हाँ जो हाँ उनको माता पिता को, मतलब ऐसे कुछ था प्रभु जी, एक बार भागवतम में था। नहीं कोट कीजिएगा तो 100% श्योर के कोट कीजिए, नहीं तो ना सबको गलत नहीं, information। सबसे अच्छा है तो कोट करना है, वो भी आप ऋषभ देव को कोट कर रहे हैं तो ग्रंथ निकाल के और श्लोक निकाल के बोलिए। नहीं तो कुछ भी आपका अगर माने, इतना तो हम लोग का मेमोरी शार्प नहीं होता है कि जो कोट का एकदम एज इट इज मैंने यहाँ बोल दिया, तो कुछ भी अगर मिसमैच होगा तो लोगों को गलत फहमी लगेगा ऋषभ देव के बारे में। ठीक है, पर मुझे बताएंगे ऋषभ देव का ही था ये वाला, लेकिन पूरा एज इट इज है, इस हम बता दें। ठीक है, ओके आगे बढ़े, ये थोड़ा और बाकी है। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোক সাধারণ পিতামাতার সেবা করার নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করেছে। इसका क्यों क्या होगा? लौकिकी वैदिकी वापि या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूल्यैव सकार्या भक्तिमिच्छता। লৌকিকী অথবা বৈদিক সেই কার্যই করা উচিত যা কৃষ্ণ সেবার অনুকূল। শ্রীমদ্ ভাগবতে অধ্যায়ন
শ্রীমদ ভাগবত অধ্যয়ন করার সম্বন্ধে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবৈষ্ণব পেশাদারী ভাগবত পাঠকদের পাঠ শুনতে সুস্পৃষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। এই সম্পর্কে শ্রীল সনাতন গোস্বামী পদ্ম পুরাণে একটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন। অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণম पूतं हरि कथामृतम श्रवणाम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापया। অবৈষ্ণবের মুখ থেকে কখনো হরি কথা পর্যন্ত শ্রবণ করা উচিত না। মানে इसको ऐसा लिखिए, পর্যন্ত ওয়ার্ড लिखा हुआ है ना, तो हरि অবৈষ্ণব এর মুখ থেকে যারা জাগতিক কথা তো শুনতেই নেই, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो हरि कथा भी नहीं सुनना चाहिए। अगर अवैष्णव अगर हरि कथा बोल रहे हैं, मतलब कितना अच्छा श्रेष्ठ चीज है हरि कथा, लेकिन अगर अवैष्णव बोल रहे हैं तो वो भी नहीं सुनना चाहिए। ऐसे इसको लीजिए, क्या ना ता सर्पेर लेकिन प्रभु जी वो तो भगवान का कथा सुना रहे हैं ना, तो भी नहीं सुने। नहीं तो भी मत सुनिए, भगवान के बारे में कह रहे हैं ना, क्योंकि उल्टा पुल्टा बोल देगा। अच्छा। जो 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 उनको ज्ञान नहीं है ऐसा कुछ बोल देगा, हाँ। इसलिए उनसे सुनना नहीं तो दूध में सांप को मुंह लग फिलोसॉफी जाता क्लियर नहीं। यस राजीव बंग प्रभु, वो यहाँ बताया गया हिंदी में तो लिखा हुआ एकदम क्लियर, यदि वो कृष्ण के विषय में भी बोले तो भी ऐसे उपदेश को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सो মানে इसका मतलब क्या, अवैष्णव मुख থেকে কখনো হরি কথা পর্যন্ত, মানে नॉट ओनली जड़ जागतिक कथा भी सुनना नहीं चाहिए। आप बोल सकते हैं ये तो ठीक है, ये तो मटेरियल बात बोल रहा है, वो सुने अवैष्णव नहीं, वो तो सुनना ही नहीं चाहिए। प्लस अगर वो हरि कथा भी बोले तो भी तो सुनना ही नहीं चाहिए। क्या सुनीत राधिका माता जी? प्रभु जी जो ऊपर दिया हुआ ना 5वां स्कंद का 5वां चैप्टर का 18 नंबर श्लोक भागवतम में 5.5.18, हाँ भागवतम अभी हम लेके आए प्रभु जी, उसी में ही लिखा हुआ है ऋषभ देव का। अच्छा, ये श्लोक ऋषभ देव का है क्या? पढ़े प्रभु जी तात्पर्य, अभी हम लेके आए भागवतम, है ना। गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु ऋषभ देव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से उबार सकने में असमर्थ हो उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार जन्म तथा मृत्यु के पद से अपने को बचा नहीं पाता। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामिति सुअर्जनम, केवल भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता है। जन्म कर्म च देवम न व्यक्ति तोक्तता। और फिर उसकी और भी है प्रभु, तात्पर्य लिखता ही पड़ेगा। माता जी श्लोक नंबर और कैंटो बताइए जरा। वही भागवतम का 5 लिखा हुआ है 5.5.18। ज्योति माता जी प्रभु तो मैं ये बोलना चाह रही थी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन वैष्णव के, इट्स जस्ट माय क्वेश्चन, माय डाउट दैट कि अगर हम नहीं सुने नॉन वैष्णव से, पर हम डिवोटीज को नहीं सुनना चाहिए, मैंने ये माना, बिकॉज हम एडवांस कर रहे हैं तो हम हो सकता है फॉलन हो जाए उनके सेंटेंस से। लेकिन जो एकदम नास्तिक लोग हैं, उन लोग कहीं कथा चल रही है भागवतम की, एटलीस्ट इधर उधर की फालतू चीजों करने से अच्छा है वो बैठे कुछ एटलीस्ट भगवान का नाम तो ले रहे हैं, क्या उनके लिए भी ये वर्जित है? उनके लिए तो अच्छा, ठीक है। नाई मोहम्मद से कनाव हलो उनके लिए ठीक है, तो प्रभुपाद थोड़ी उनके लिए बोलेगा, प्रभुपाद तो सर्वोच्च सिद्धांत ही देगा ना। ओके ठीक है, हाँ ओके। हरे कृष्ण गुरु जी श्लोक नंबर फिर से बताइए माता जी, समझ में नहीं आया। শ্লোক নম্বর তো ইন্দ্রাণী মাতা জি দেওয়া আছে, ওটাই আমি বলছেন, ওখানে দেওয়া আছে 5-8 দেওয়া আছে। और प्रभु और एक चीज और पूछना था, और किसी को भी हम बोलते हैं ना, वेजिटेरियन खाने लग गया कल, अगर कौवा वेजिटेरियन खाने लग गया, हरे कृष्ण, तो आप क्या बोलेगा कौवा को, अरे तुम वेज खा रहे हो, प्रसाद लेना चाहिए, विल यू से दैट? अगर कल वेजिटेरियन लेने तो आप बोलेंगे हरी बोल कौवा देव कितना अच्छा कौवा है, ये वेजिटेरियन खा रहे हैं। हम लोग भी अप्रिशिएट नहीं करते, कोई बोलता है मेरा कुत्ता है ये वेजिटेरियन नहीं खाता है, कोई बोलता है ना ऐसे, मेरा कुकुर है डॉग है घर में, लेकिन वो सिर्फ वेज खाता है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाह कितना बढ़िया डॉग है, वेजिटेरियन खाता है, यही तो बोलेंगे ना। थोड़ी हम लोग बोलेंगे भाई प्रसाद क्यों नहीं खाता है, ये थोड़ी बोलेंगे। अरे कुत्ता वेज फूड खाने लगे तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, उससे थोड़ी हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो प्रसाद खाएगा। तो वैसे ही अगर कोई नास्तिक हाँ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का सुन लिया, हाँ लेकिन अवैष्णव के मुंह से भी सुन लिया, बहुत अच्छा, नाइमा मारचे कानावा भालो, वेरी गुड, वील अप्रिशिएट दैट ओनली। थोड़ी एक नास्तिक से उम्मीद कर सकते हैं वो कृष्ण प्रसाद खाएगा, थोड़ी एक नास्तिक से उम्मीद कर सकते हैं वो कृष्ण तत्व श्रवण करेगा। नो, दैट इज ओवर एस्टिमेशन ऑफ अ ऑर्डिनरी मंडेन पर्सन। पर प्रभु हमको बोलते हैं ना जब कि अरे चलो यहाँ सुनते हैं, आज यहाँ हो रहा है, तुम तो बहुत भागवत सुनती हो, करती हो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं प्रभु। तब हम जब उनको बोलते हैं ना कि नहीं हम लोग अपना इस्कॉन मतलब हम अपने प्योर वैष्णव से, उनके डिवोटी से ही सुनते हैं, नहीं तो नहीं वो नहीं, बोलते हैं तुरंत इंटेलिजेंट पर्सन बोल कहा ठीक है चलो सुनते हैं, सुन लेगा, फिर बोले तुम भी चलो हमें कह के सुनाएंगे, तुम भी चलो ठीक है, मैंने आपका सुना था, देखो सुन लिया, चलो यू ऑल्सो कम विथ मी, तुमको भी एक सुनाएंगे, ऐसे करके यू शुड मेक अ डील। तो प्रभु हम तो नहीं सुनने जा सकते ना प्रभु उनका, जा सकते हैं, ये बस ये कैसे लेकर प्रभु? ऐसे ये लेकर जाइएगा। ओ हरे कृष्ण। अच्छा सुनिएगा बस, ईयरफोन दे दीजिएगा हमें। हरी बोल हरी बोल। So to find a way out, to be, anyways, okay, हो गया, इस तात्पर्य समाप्त हो गया, थोड़ा बाकी है क्या? हाँ प्रभु बाकी है, पैराग्राफ बाकी है, श्लोक के बाद। শ্লোক के बाद, ओके। অবৈষ্ণবের মুখ থেকে কখনো হরিকথা পর্যন্ত শ্রবণ করা উচিত না, কেননা তার সর্পের উচ্ছিষ্ট দুধের মতো। আজকাল ভাগবত সপ্তাহ পালন করার একটি নব্য প্রচলন হয়েছে, যাতে এক সপ্তাহ ধরে ভাগবত পাঠ হয় এবং যারা তা পাঠ করেন তারা ভগবত ভক্ত নন অথবা আত্মতত্ত্ব ব্যক্তা নন। এমনকি বহু মায়াবাদীও আজকাল শ্রীমদ ভাগবত পাঠ করেন এবং তাদের পাঠ শুনে বহু লোকের ভিড় হয়। বহু মায়াবাদীরা আজকাল বৃন্দাবনে শ্রীমদ ভাগবত পাঠ শুরু করেছেন এবং যেহেতু তারা বাক্য বিন্যাস করে ব্যাকরণের মারপ্যাচ কদর্থ করে শ্রীমদ ভাগবত ব্যাখ্যা করে, তাই ভোগপরায়ণ বিষয়ীরা पारमार्थिक नामे वृंदावने गए ताদের पाठ सुने। क्यों? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। देखो एक कथा को घूर पैच करके ये सब आता है उन लोग को, एक कोई सेंटेंस लेकर इसको घूर पैच करके अलग अलग सुनाएगा। जो लोग व्यक्ति बहुत फिलोसॉफिकल होता है ना, जिनको शास्त्र वर्ड ग्रामर ये सब में बहुत पटु होता है, उन लोग को ये सब अच्छा लगेगा, छल चतुरी, ओ माय गुडनेस, जस्ट सी ये कितना एक वर्ड को लेके एक सेंटेंस को लेके कितना अलग अलग एंगल से क्या क्या बोल रहे हैं, कितना पंडित है, महापंडित। सो फॉर देम इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट द स्पीकर इज अ बिग स्कॉलर, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वेदर द स्पीकर इज अ बिग डिवोटी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना बड़ा पंडित है। और शुद्ध भक्त क्या देखता है? शुद्ध भक्त देखता है वक्ता का शुद्धता। हो सकता है जो वक्ता है वो अच्छा से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, अच्छा से कीर्तन नहीं कर पा रहा है, अच्छा से श्लोक भी नहीं पढ़ पा रहा है, श्लोक का ट्यून भी मालूम नहीं है, लेकिन ही इज अ प्योर डिवोटी, और प्योर डिवोटी का जो शुद्धता है वो उसको दिखाई मिलेगा। इसीलिए अशोक प्रभु रतन चिन्ह। यस बोलिए। वही बोल रहे बहू कि जो भागवत बोलने वाला है यथार्थ बोलता है, उस अगर वैष्णव नहीं है तो उसका लक्ष्य भी अलग है, उसको पैसे कमाने से मतलब है, आदमी को जमा करने से मतलब है, तभी उसको पैसा ज्यादा होगा। और जहाँ वैष्णव है उनको पैसे से मतलब नहीं है, उनको भागवत से मतलब है। तो भगवत ज्ञान और हम लोग भी ना बीच बीच में वी आल्सो शुड चेक जो हम लोग का क्या मोटिव है। हम लोग भी कुछ कुछ स्पीकर्स को चुन के रखे हैं ना, जो इनसे सुनेंगे। वी आल्सो हैव आवर फेवरेट स्पीकर्स, ऐसा होता है ना। अगर हाँ तो हम लोग को भी देखना चाहिए हम लोग का टेंडेंसी कहाँ है। कोई किसी को ब्रज भाषा में बहुत अच्छा लगता है श्रवण में, वी कुड कनेक्ट। तो वो ब्रज भाषा के चक्कर में वो सोचता कि अगर कोई इस्कॉन से भी ना हो लेकिन ब्रज भाषा में भागवत सप्ताह करा रहे हैं, रादर आई हियर टू हिम, उसके लिए वो दैट वो परंपरा दैट डजंट मैटर, तो ब्रज भाषा है, ब्रजवासी है, दैट मोर इम्पोर्टेंट। ऐसे बहुत लोग करते हैं। ब्रज भाषा में हम जब सुनते हैं भागवत तो हमारा हृदय छू जाता है। These are all misconceptions. What matters is the content. What matters is the speaker. ऐसा बहुत स्पीकर भी हो सकते हैं जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन स्पीकर हिमसेल्फ इज नॉट फॉलोइंग दोस। उनका खुद उपलब्धि नहीं है लेकिन अच्छा बोल सकता है। That also could be there.
लेकिन खुद अच्छा भक्त नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो खोखला प्रचार होगा। यस, राजीव बहन प्रभु। कभी कभी प्रभु ऐसा भी होता है कि मतलब भागवत कथा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे जाके खाना पीना यही इम्पोर्टेंट है कि हमको जाना है। जैसे हमको बुलाया गया इनविटेशन के हिसाब से भी लोग जाते हैं, जाके जस्ट खाली अटेंड करना, खाना और आ जाना। ये तो है। यस, ওকে, লাস্ট থোড়া বাকি है। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে তা নিষেধ করেছেন। সাবধানতার সঙ্গে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে যে এই সমস্ত মায়াবাদীদের যেহেতু শ্রীমদ্ ভাগবতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাই ভাগবত পাঠ করে তারা অন্যের ভববন্ধন মোচন করতে পারেন না। जेहेतु श्रीमद् भागवत अर्थ हृदयंगम करते तो अगर खुद को उसको श्रीमद् भागवतम का अर्थ जो मूल तत्व है वो अगर समझ में नहीं आया, खुद को उद्धार नहीं कर पाया, तो दूसरे को क्या करेगा? अगर उसको श्रीमद् भागवत का एसेंस क्या है? श्रीमद् भागवत का एसेंस यही है कि खुद अच्छा भक्त बने और दूसरे को भगवान का भक्त बनाए। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। यही अगर समझ में नहीं आया, वो श्रीमद् भागवतम का श्लोक को लेकर टेरा मेरा ये सब करने का और अपना कौशलता दिखा रहा है, अपना पांडित्य दिखा रहे कि कितना ग्रामर में और कितना व्याकरण में और संस्कृत में कितना पटु है। सो देन मेन ऑब्जेक्टिव इज डाइवर्टेड। यस, राजीव प्रभु। वो मेरे ननियाल में भी ऐसा एक भागवत कथा उन्होंने अरेंज किया था। वो जो वक्ता था वो शंकराचार्य संप्रदाय से मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब वो पूरा परंपरा में भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सुन के ऐसा लग रहा था, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो तो भगवान का पोजीशन को इतना नीचे उतार देते हैं, तो भगवान के ऊपर आदमी को फेथ कहाँ से आएगा? भागवतम जो भगवान का महिमा ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, तो भगवान का पोजीशन को नीचे कर देते हैं। हरे कृष्ण। পক্ষান্তরে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সমস্ত জড়বন্ধন থেকে মুক্ত, তার জীবন এবং আচরণ শ্রীমদ্ ভাগবতের মূর্ত প্রকাশ, তাই তার কাছে শ্রীমদ্ ভাগবতের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায়। सो ग्रंथ भागवत व्यक्ति भागवत से श्रवण करना चाहिए। ओके, सो यहीं तक रखते हैं हम लोग आज। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, হরিয়া সবে বল হরি হরি। पाद की जय, की जय, जय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल।